Hello and welcome to Shivanomics, where economics meets clarity. If you are preparing for HPSC Assistant Professor Economics Subject Knowledge Test, this video is your complete roadmap for the last 20 days. The exam is just around the corner, and if you are feeling stressed, that's completely okay. You are not alone feeling this way, and this video is here to help you. So, take a deep breath. Let's plan smart, stay calm, and make each day count. तो चलिए साथ में शुरू करते हैं. Now let's understand the pattern of this exam because knowing exactly what you are walking into helps you plan better. So as you all know, subjective exam होगा. There would be 15 questions comprising 10 marks each. तो total 150 marks का exam होगा आपका. You will be given 3 hours time. No extra additional sheet would be given. इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं. अभी तक जो भी HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स हुए हैं, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और सब्जेक्ट्स के, उनमें आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाता है और जो आंसर बुकलेट होती है उसमें भी क्वेश्चन प्रिंटेड होता है और आपको स्पेसिफाइड स्पेस मिलती है फॉर एवरी आंसर. तो जो आंसर बुकलेट है अभी तक 60 पेजेस की मिली है जो सुनने में आया है. एंड फॉर एवरी 10 मार्कर यू आर गिवन 4 पेजेस टू राइट. 4 पेजेस मतलब 4 साइड्स. चलिए अब समझते हैं व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू इन दिस एग्जाम. MA लेवल कंसेप्चुअल क्लैरिटी. ऑब्वियसली आपका जो सिलेबस है वो UGC नेट वाला है, सेम टू सेम सिलेबस. And obviously after becoming assistant professor you will have to teach graduation as well as post graduation classes. तो आपको MA level conceptual clarity तो होनी ही चाहिए. Now coming to analytical depth, you are not just required to know what but also why and how. Structured writing होनी चाहिए आपकी and time management obviously आपको करनी आनी चाहिए, तभी आप अपना टाइम से एग्ज़ाम कंप्लीट कर पाओगे. Think like a university lecturer, conceptually sound, well organized and academically clear. तो you must remember एग्ज़ाम सिर्फ नॉलेज का नहीं है, it's about how smartly and clearly you present that knowledge. अब सबसे कॉमन डाउट PYQs ही नहीं है. अब जब हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही नहीं है इस एग्ज़ाम के, so how do we know what to expect in the exam? It's a valid concern, but here's a practical solution. आप इकोनॉमिक्स के पेपर्स यूज़ कर सकते हो ऑफ अदर HPSC एग्जाम्स. यू कैन स्टार्ट विद HPSC PGT क्वेश्चन पेपर जो सब्जेक्टिव पेपर हुआ था उसका, एंड इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के पेपर देख सकते हो HCS के. दे विल रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ एनालिसिस एंड क्लैरिटी HPSC ऑफन डिमांड्स. I know these papers won't be perfect match, but they'll help you build answer writing skills, improve time management and align your preparation with HPSC's overall standards. आफ्टर ऑल क्योंकि ये वाले एग्जाम्स भी हैं तो HPSC के, तो कमीशन तो सेम ही है, तो आपको एक आइडिया तो मिल ही जाएगा क्वेश्चंस का. सो इन द एब्सेंस ऑफ PYQs यूजिंग पैरेलल सोर्सेज वाइजली इज द स्मार्टेस्ट वे फॉरवर्ड. तो इस टाइम आप यही कर सकते हो, इनके क्वेश्चन पेपर्स देखिए और उनको या तो एज अ मॉक टेस्ट लगा सकते हो आप, या फिर रोज थोड़े थोड़े क्वेश्चंस लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो. लेट्स मूव फॉरवर्ड. फाइनल 20 days must do checklist. I won't impose a fixed day wise schedule. You know your pace best. But in these last 20 days, there are some non negotiables that you must cover no matter how you plan. पहला, revise the entire syllabus at least twice. यहाँ पे कुछ भी छोड़ने का स्कोप ही नहीं है आपके पास, क्योंकि कोई चॉइस ही नहीं मिल रही है क्वेश्चन पेपर में. तो आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको सारा सिलेबस कवर करना ही पड़ेगा. बट आप ये कर सकते हो कि आप कोर थ्योरीज, डायग्राम्स और एग्जांपल्स पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं. These are the backbone of most answers. Update your Indian economy notes, add latest data, government schemes, real developments. It shows awareness in depth. Next, write at least 4 full length tests. इससे आपके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगी. You must remember speed plus precision. That's your winning combination in this exam. Don't just read passively. Take time to reflect, self correct, and improve every single day.
You must remember this checklist is not optional, it's essential. Now, coming to answer writing tips. Answer writing is where most candidates lose marks, not because they don't know, but because they don't express it well. आपकी तैयारी चाहे जितने भी स्ट्रांग हो, अगर आप अपने आंसर्स को सही तरीके से फ्रेम नहीं कर पाए, then you won't get marks. Here are some crucial tips. First, read the question very very carefully. Don't rush. Break it down. समझो पूछा क्या गया है. Second, plan before you write any answer. क्या पॉइंट्स लिखने हैं आपको, किस ऑर्डर में लिखने हैं, थोड़ा मेंटली सॉर्ट करो. रैंडम फ्लो अवॉइड करो प्लीज़, क्योंकि ऐसा ना हो आप एकदम बिना सोचे लिखने लग जाओ और बाद में आपको पॉइंट्स आए, अच्छा मुझे ऊपर ये लिखना था, नीचे ये लिखना था, तो बहुत हैपहैज़र्ड हो जाता है. तो इट्स बेटर टू डिसाइड योर फ्लो फर्स्ट एंड देन स्टार्ट राइटिंग. नेक्स्ट, स्टिक टू द प्रॉपर स्ट्रक्चर, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन. ये 3 चीज़ें होनी ही चाहिए, चाहे शॉर्ट आंसर हो या लॉन्ग आंसर हो. देन यूज़ ग्राफ्स, एग्जाम्पल्स, डेटा. दे शो क्लैरिटी एंड कमांड ओवर द सब्जेक्ट. नेक्स्ट, जब भी आपको कोई मॉडल एक्सप्लेन करना है तो यू मस्ट राइट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पशंस बिफोर एक्सप्लेनिंग दैट. उससे आपकी क्लैरिटी पता चलती है. एंड फाइनली, प्रिसीजन मैटर्स. यू कांट यूज वर्ड्स लूजली. डेप्रिसिएशन की जगह डिवैल्यूएशन यूज नहीं कर सकते. रेवेन्यू डेफिसिट की जगह फिजिकल डेफिसिट नहीं यूज कर सकते. यू मस्ट बी वेरी क्लियर व्हाइल राइटिंग योर आंसर्स. अगर हम इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन की बात करें तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डायरेक्टली एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ. उसके बाद अगर आपसे कोई मॉडल वगैरह पूछा है तो आप उसकी कुछ एग्जाम्पशंस मेंशन करोगे. अगर किसी क्वेश्चन में डायग्राम आता है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ दैट. उसके बाद आप उसको इलेबोरेट करोगे, जो भी क्वेश्चन की डिमांड है वो लिखोगे. एंड ऑल्सो यू मस्ट लेबल योर डायग्राम वेरी प्रॉपरली कि यहाँ क्या है, यहाँ क्या है. ये ग्राफ्स को प्रॉपरली लेबल करना है. अगर हम कंक्लूजन की बात करें, कंक्लूडिंग योर आंसर्स विद सम कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स ऑलवेज एड्स वैल्यू. आप थ्योरी को एप्लीकेशन पार्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हो. अगर हम इंडियन इकोनॉमी वाले क्वेश्चंस की बात करें तो इंट्रोडक्शन कैन बी एनी डेटा, फिगर, कोट और एग्जाम्पल which directly meets the demand of the question. If you talk about body, so that should include tables, charts wherever necessary. Also, it is very important to quote economists here, as it reflects that your opinions have some sound basis. इकोनॉमिक सर्वे की हेल्प ले सकते हो अपने आंसर्स को एनरिच करने के लिए. एंड इफ वी टॉक अबाउट कंक्लूजन हियर कैन बी सम कनेक्शन विद इकोनॉमिक थ्योरी. फॉर एग्जांपल, यू कैन राइट कुजनेट्स कर्व व्हाइल राइटिंग अबाउट इनइक्वालिटी. लुईस मॉडल मेंशन कर सकते हो व्हाइल डिस्कसिंग अबाउट स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. इससे आपके इन डेप्थ नॉलेज का पता चलेगा. इन शॉर्ट, राइट लाइक अ टीचर, नॉट जस्ट अ स्टूडेंट. क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस एंड करेक्ट फ्रेमिंग, यही आपके मार्क्स बढ़ाएंगे. Now coming to the next slide. In these final days, what you avoid matters as much as what you do. तो चलिए देखते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आपको डेफिनेटली अवॉइड करनी चाहिए. फर्स्ट, you must avoid last minute hoarding. Focus on revision and not collection of new material. Second mistake that most of the candidates do is skipping answer writing practice. You must remember कि ये written exam है, आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी. Knowing isn't enough. You must know how to present it. Next is leaving some topics for later. जो भी आपके टॉपिक्स रहते हैं, you must prepare a list of those topics और उनको ऐसे अपने स्लॉट में डिवाइड कर लो कि ये आज करना है, कल करना है, परसों करना है. एंड के लिए कुछ मत छोड़ना प्लीज़, वरना कल 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 करते ऐसे ही आपका टाइम निकल जाएगा और एग्ज़ाम ही आ जाएगा. नेक्स्ट इज़ नॉट राइटिंग फुल लेंथ टेस्ट्स. प्लीज़ डोंट अवॉइड इट. अगर हम फुल लेंथ टेस्ट की रेलिवेंस की बात करें तो आपको ये टाइम मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट से समझ आएगा. देखिए, आपके पास एग्जाम में होंगे 180 मिनट्स, आपको लिखने होंगे 15 क्वेश्चंस, तो अप्रॉक्सीमेटली 12 मिनट्स होंगे आपके पास टू राइट वन आंसर 10 मार्क्स का. और इन 12 मिनट्स में भी आपको क्वेश्चन को पढ़ना भी है, उसको समझना है, ब्रेक डाउन करना है, प्लान करना है. तो इफेक्टिवली आपके पास 10 to 11 मिनट्स ही होंगे फॉर एवरी क्वेश्चन. बीच में आपका टाइम वैसे भी जाएगा थोड़ा बहुत इधर उधर. तो फुल लेंथ टेस्ट यू मस्ट राइट, तभी आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चलेगा, तभी आपका एग्जाम कंप्लीट हो पाएगा. आपको ये बात ध्यान रखनी है, योर फाइनल एग्जाम शुडंट अपीयर टू बी योर फर्स्ट अटेम्प्ट. आप उससे पहले फुल लेंथ टेस्ट लिख चुके होगे तो आप हैबिचुअल हो चुके होगे उसको लिखने में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी.
Next mistake to avoid is getting stuck on one topic for too long. Obviously आपके पास limited time है तो you must use it judiciously. Now coming to final exam day tips. You have to stay calm. Manage your time well. आपके पास 10 to 11 minutes ही मान के चलने हैं आपको एक question के लिए. You must write clearly. Diagrams, graphs, data, keywords, economists को quote करना है आपको wherever possible. And you must attempt all questions. चाहे आपको अगर क्वेश्चन समझ भी ना आता हो तो उसमें भी आपको उससे रेलेवेंट जो भी पता है कीवर्ड्स एग्जांपल्स जो भी आपको समझ आता है प्लीज़ वो लिख के आना, ब्लैंक मत छोड़ के आना कुछ भी. एंड टाइम मैनेजमेंट पे प्लीज़ स्पेसिफिकली फोकस करना. ऐसा मत करना कि आपको जो क्वेश्चन अच्छे से आता है उसमें आप इतना लिखने लग गए कि बाकी आपके छूट गए. तो बाद में एक जौन सा आप अच्छा लिख के आओगे उसमें हो सकता है आपको 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाए बट नेट रिजल्ट आपका लॉस ही होगा क्योंकि उसके चक्कर में आपके जो क्वेश्चंस छूट जाएंगे उनमें आपको ज़्यादा लॉस होगा. तो अगर हम इस सबको समराइज करें, एग्जाम डे पे आपका गोल इज़ टू स्टे काम एंड मैनेज टाइम अराउंड 10-11 मिनट्स पर क्वेश्चन. यू मस्ट अटेम्प्ट ऑल 15 क्वेश्चंस. फोकस ऑन क्वालिटी एंड स्ट्रक्चर. अननेसेसरीली कि मेरे को सारे पेजेस भरने हैं उसके चक्कर में ऐसा ना हो कि आपके एंड में क्वेश्चन छूट जाएं. सो यू मस्ट स्ट्राइक अ बैलेंस. Clean handwriting and smart examples can make a huge difference. So, you are 20 days away. You don't need miracles. You need clarity, calm, and consistency. Stick to your plan, trust your preparation, and practice like you are already in the exam hall. You must remember your success now depends not on how much you know, but on how well you present what you know. If you have any thoughts, questions, or confusions, please drop them in comment section. Good luck for your exam. Thank you for watching. I'll see you next time.